All right. So going ahead with theory, आज हमको what we want to do today is we want to study what is a galvanometer, क्योंकि हमने वेटस्टोन ब्रिज में भी गैल्वेनोमीटर यूज किया था। गैल्वेनोमीटर का डिटेल थियरी जो है that will be taken in the next chapter, magnetic effect of electric currents। थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन किया है न्यू टेक्स्ट बुक में। गैल्वेनोमीटर और उसके एप्लीकेशंस बोथ वेर इंक्लूडेड इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द लास्ट previous syllabus, all textbooks, but now they have included applications of galvanometer in this chapter and the theory of galvanometer in the next chapter. Okay, so before we start galvanometer, there are two topics which are purely theoretical. 9.4.2c, application of potentiometer, and 9.4.3, advantages of potentiometer over a voltmeter. These are purely theory, so you are supposed to go through it, right? If you have any difficulties, if you find it difficult, you can ask me. It is purely theory, there is nothing, so you have to go through it. Then starting with galvanometer, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर के लिए हम लोगों को सिर्फ रफली देखना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है और गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करंट मेजरमेंट के लिए, मतलब एमीटर कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट galvanometer into a voltmeter. This is what we will be studying in this chapter. So galvanometer is actually a very simple device. So as you can see from figure, हमारे पास एक basically galvanometer is a device to detect weak currents, small electric currents measure करने के लिए device use होता है। It has a coil which is suspended in a magnetic field. So you can see this is a horseshoe magnet with concave poles. Poles देखो concave shape के है. So these poles here, they are concave shaped, and this is a horseshoe magnet. अगर आपने horse का shoe देखा होगा तो आपको समझेगा what I am saying. Horse का जो shoe होता है, it is of this shape, and then this is north pole and south pole over here. North और south pole जो है, they are concave shape. So a galvanometer has a suspended coil between concave pole faces of a horseshoe magnet. It works on the principle of magnetic effect of electric current, जो हम लोग next chapter में सीखने वाले हैं. But I'll just give you a brief idea about what happens. जब आप इस coil में से, ये जो coil दिख रहा है आपको, ये जो coil है अंदर, okay, this wirings, जब आप इस coil में से करंट पास करोगे तो यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल जो है, यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड हियर, और जैसे ही आपने कॉइल में से करंट पास कर दिया, सो यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड this current carrying conductor will interact with the external magnetic field, and because of that current and because of this interaction, the coil starts deflecting, it starts rotating. करंट कैरिंग कंडक्टर कभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, राइट, और दोनों साइड्स पे एक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो करंट इज डाउन टू अप, और करंट कैसे जाएगा, देन करंट विल गो लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो करंट विल बी अप टू डाउन, तो करंट का डायरेक्शन है अपोजिट, मतलब दोनों कॉइल पे फोर्स है अपोजिट, मतलब इस पे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, तो उस साइड पे इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
मतलब basically the idea is the coil will rotate. You can look at what I'm showing you in my video. So you have, this is a coil, current ऐसा जा रहा है, current is going through the I mean you can say clockwise. तो एक end पे force लगेगा outwards और दूसरे पे लगेगा inwards, so that the coil starts rotating. Easy idea. Detailed analysis will be in next chapter. So because of this equal and opposite force on the opposite sides of coil, the coil rotates. और coil जब rotate होगा तो coil के ऊपर एक pointer लगाया है. You can see this pointer here. ये pointer लगाया है. तो coil rotate होगा तो ये pointer rotate होगा, मतलब pointer भी deflect होगा. और ये जो pointer है ये एक scale पे, I mean this is mounted on a scale basically. तो जैसे करंट पास करोगे तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगा. डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन. और डिफ्लेक्शन मतलब वो कॉइल रोटेट होगा, और कॉइल रोटेट होगा तो कॉइल के ऊपर जो पॉइंटर लगाया है वो रोटेट होगा. और ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? एक स्केल पे. तो as current is increased, the deflection will increase and the pointer will rotate and it is basically calibrated with a scale. तो ये आपको करंट का रीडिंग देता है. ओके, राइट. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. है क्या? आपके पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है विद कॉन्केव पोल्स. जो पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, दे आर कर्व्ड एंड दे आर कॉन्केव. और हॉर्स शू मैग्नेट है, राइट. मतलब ये हॉर्स शू मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा. फिर हॉर्स शू मैग्नेट के पोल्स में आपने एक कॉइल को लग दिया, दैट इज सस्पेंडेड कॉइल. सस्पेंड किया है हमने, सस्पेंशन दिखाया नहीं है, बट इट विल बी लाइक कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट समवेयर ओवर हियर. तो हमने दिखाया नहीं, जरूरत नहीं है इसलिए, राइट. व्हाट हैपेंस इज दिस, व्हेन यू circulate a current through this coil, the current through two opposite faces, the currents are equal but opposite in direction. So you already know from 11th theory, जब भी आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में. फिर आप बोलोगे कि ये ऊपर भी तो करंट है कॉइल में, नीचे भी है, तो फिर वो फोर्स एक्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो फोर्स एक्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? दैट इज पार्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. बताऊंगा क्यों नहीं होगा, इन डिटेल बताऊंगा मैं, राइट. सो वी विल सी galvanometer in detail in the next chapter, but for the time being only on two opposite faces the force will act. तो एक फोर्स इनवर्ड्स है, एक फोर्स आउटवर्ड्स है, तो कॉइल रोटेट होगा. कॉइल रोटेट होगा तो कॉइल के ऊपर पॉइंटर लगाया है वो रोटेट होगा, और पॉइंटर जो है वो स्केल पे पॉइंट कर रहा है. तो बेसिकली द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना ज्यादा करंट आप कॉइल से पास करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. एंड दिस इज द वे you can read small currents using a galvanometer. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल डिवाइस है. तो वी विल जस्ट राइट डाउन about galvanometer and then we will go ahead and see how to convert galvanometer into an ammeter. एमीटर कैसे बनाएंगे? बाय द वे, डिफरेंस क्या है फिर galvanometer और एमीटर में? galvanometer measures very small current, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के रेंज के करंट होते हैं. क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे गैल्वेनोमीटर का, यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, हेलिक्स शेप का स्प्रिंग होता है बेसिकली. उसका काम क्या है? उसका काम है रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना. मतलब क्या, समझ लो एक बार. सपोज मैंने एक करंट पास कर दिया था, उस करंट ने कॉइल को रोटेट कर दिया था, और पॉइंटर आ गया था आपका, लेट अस से समवेयर हियर, पॉइंटर आ गया. ओके, करंट पास किया तो करंट थ्रू अ कॉइल एंड दैट कॉइल इज केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स, मतलब कॉइल रोटेट होगा तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा. अब मैंने करंट बंद कर दिया, तो मैंने करंट बंद किया, करंट बंद किया मतलब दिस कॉइल शुड गो अगेन टू जीरो, है ना? करेक्ट. तो जैसे कॉइल, अगर सपोज ये कॉइल है,
कॉइल अगर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो जो नीचे स्प्रिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि आपको पॉइंटर को वापस अपनी जगह पे लाना है। तो करंट बंद करने के बाद जितने अमाउंट से कॉइल रोटेट हुआ था, कॉइल का रोटेशन कैंसल आउट करना है, न्यूट्रलाइज करना है, मतलब कॉइल जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन में था वहां आना चाहिए, तब जाके पॉइंटर जीरो पे मार्क करेगा। तो ये करंट बंद करने के बाद कॉइल रोटेट कैसे होगा? तो ये जो नीचे हेलिकल स्प्रिंग है एच, तो कॉइल अगर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो हेलिकल स्प्रिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। जैसे करंट बंद किया तो हेलिकल स्प्रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड the coil will rotate in opposite direction. So helical spring का रोल है to provide restoring torque, मतलब कॉइल को अपने ओरिजिनल जगह पे वापस लाना करंट बंद करने के बाद। All this detail will be taken in next chapter, but I wanted to tell you कि what is the difference between galvanometer and ammeter. Galvanometer can measure very small currents of the order of micro or milliampere. क्यों? क्योंकि जो हेलिकल स्प्रिंग हमने लगाया था एच, इट इज डेलिकेट, डेलिकेट स्प्रिंग है। ज्यादा करंट तुमने पास किया तो ज्यादा हेलिकल स्प्रिंग रोटेट होगा। अगर ज्यादा स्प्रिंग रोटेट हुआ तो स्प्रिंग टूट जाएगा। तो टू अवॉइड एनी डैमेजेस we pass very small current through galvanometer, and galvanometer is actually capable of measuring only small currents, right? तो गैल्वेनोमीटर यूज करके लार्ज करंट कैसे मेजर करते हैं, दैट इज एमीटर। और एमीटर में क्या करते हैं वो आगे हम देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इट वाज रिक्वायर्ड फॉर मी टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ओके, सो लेट्स क्विकली राइट डाउन थियरी ऑफ गैल्वेनोमीटर। बहुत कॉम्पैक्ट थियरी रखने वाला हूं मैं यहाँ पे। So we are not going to write a lot of details क्योंकि details हमको next chapter में देखने ही है इसके। So for the time being, we just need to know basic construction of a galvanometer. So a galvanometer is a device used to measure or detect very small electric currents or weak electric currents in a circuit. Of course, weak electric currents. It has a suspended coil between concave poles of a strong horseshoe magnet, right? तो बेसिकली होता क्या है, that when you pass electric current, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, when you pass electric current what happens is, when an electric current passes through the coil, it deflects. The deflection of the coil is proportional to the current passing through the coil, is proportional to the current passing through the coil. Okay, then ये जो डिफ्लेक्शन है हम रीड कैसे करेंगे? सो वी रीड इट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो जो पॉइंटर वहां पे पॉइंटेड है ऊपर, माउंटेड है मतलब, तो विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंटर वी कैन मेजर दैट करंट डिफ्लेक्शन, मतलब बेसिकली। सो द डिफ्लेक्शन is
or the reflection of the coil can be read with the help of the pointer attached to it, attached to the coil, right? So position of the pointer on the scale indicates the value of current. Position of the pointer on the scale indicates the value of current as shown in figure. Okay, so right, then thus a galvanometer can also be used as ammeter, a voltmeter with suitable modification that we will see. इतना हमको पता होना चाहिए. Next thing is a galvanometer can be used as an ammeter or a voltmeter with suitable modifications. That is sufficient as an introduction to the galvanometer, क्योंकि हमको सिर्फ temporarily ये पता होना चाहिए कि what is basic principle on which galvanometer works. Okay, we don't need to know anything more than this at this point of time. So now we will study galvanometer as an ammeter. Let's see how to convert galvanometer into an ammeter. बहुत easy है. Yep. So 9.5.1 galvanometer as an ammeter. Galvanometer as an ammeter. Okay, so what I will do is, बहुत एक बेसिक चीज है, मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, राइट, इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मैं पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर दिखाने की जगह पे मैं सिर्फ एक कॉइल बताऊंगा, उसको एक सर्कल कर दूंगा और ऊपर जी लिख दूंगा. मतलब दिस इज अ गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस कैपिटल जी, राइट. क्योंकि जब हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, वी डोंट नीड टू शो द होल स्ट्रक्चर. तो गैल्वेनोमीटर सिंबॉलिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस अ कॉइल, क्योंकि सिर्फ कॉइल अगर दिखाया तो वो इंडक्टर बन जाता है ना. इंडक्टर क्या है, वो आगे आएगा. हाँ, राइट. अभी हमको इंडक्टर तो नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और ऊपर जी लिखता हूं, which means this is a galvanometer of resistance G, right. अब the idea is, मैंने जैसे आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर measures current, very small current, weak currents in the range of micro or milliampere. Ammeter measures current in the range of amperes. तो हम लोगों को एम्पियर की रेंज में, मतलब लार्ज करंट मेजर करने हैं, गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यूज किया तो डैमेज हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है और हमारे पास एक लार्ज करंट है. ओके, लार्ज करंट है.
अब अगर इस लार्ज करंट को मैं गैल्वेनोमीटर से पास होने देता हूं तो गैल्वेनोमीटर विल बी डैमेज्ड. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल connect a small resistance, very small resistance, बहुत small resistance हम लोग ले लेंगे in parallel, right? और पैरेलल रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट. तो हमने S मतलब शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है टू द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल, राइट? ये जो शंट या फिर पैरेलल रेजिस्टेंस है S, उसका काम क्या है? वो क्या करेगा? वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को बाईपास कर देगा और एक स्मॉल करंट को गैल्वेनोमीटर से जाने देगा, राइट? इजी. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हेवी करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होने चाहते थे, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस छोटा होगा तो करंट ज्यादा जाएगा, आपको पता है करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So we are connecting a very small resistance S in parallel, that is called as shunt resistance. So what we are doing is we are bypassing the current. देखो physics और real life they are very strongly connected. If you know, अभी यहीं से पास में एक बाईपास रोड है. बाईपास रोड का क्या मतलब होता है? बाईपास रोड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सिटी सी, फॉर एग्जाम्पल, ओके. अब ये एक रोड हो गया जो सिटी सी की तरफ जाता है और यहां से ये रास्ता बाहर निकलता है, राइट? जिनको सिटी सी में काम है वो सिटी सी में जाएंगे, राइट? जिनको काम नहीं है, जिनको सिर्फ क्रॉस करके जाना है आगे, वो भी सिटी सी के अंदर से अगर जाएंगे तो फिर देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज विद ट्रैफिक, और हेवी व्हीकल्स अगर आ गए तो फिर तो गए. इसलिए क्या करते हैं, इसलिए बाईपास रोड बनाते हैं. मतलब जिनका काम नहीं है सी सिटी के अंदर वो बाहर बाहर से चले जाओ, राइट? तो द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. हम क्या कर रहे हैं, एक लार्ज करंट था लेकिन गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी स्मॉल करंट हैंडल करने का होता है, तो मैंने एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, ओके. हमने एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं लगाया पैरेलल में, हमने एक वायर कनेक्ट किया है, दैट इज द आइडिया. क्योंकि वो वायर क्या करेगा, इट विल गिव अल्टरनेट पार्ट टू द करंट. लेकिन हर एक वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम बोलते हैं वी हैव कनेक्टेड a small resistance in parallel. Actually we have just connected a wire, but the wire itself has its own resistance, okay. So small resistance, तो resistance small है तो ज्यादा करंट पास होगा through bypass path, through alternate route, okay. And this current is and current through galvanometer ig will again combine at junction point, and then total current I will again go out from the circuit. Easy. What we can say from this diagram is we can say I is equal to Ig plus Is. That means current through shunt is I minus Ig. Okay. One more thing that we must notice is galvanometer G और shunt S they are parallel. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल और शंट का एक टर्मिनल इस साइड पे कॉमन और दूसरा टर्मिनल दे आर आल्सो कॉमन. सो बोथ द टर्मिनल्स ऑफ शंट एंड गैल्वेनोमीटर आर कॉमन. सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल. जब सिर्फ एक terminal of galvanometer is common with one terminal of another resistance, then that is series combination. यहाँ पे दोनों टर्मिनल कॉमन है तो इसलिए दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I have told you while explaining you resistances in parallel, potential drop or potential difference across parallel resistances is same.
तो potential drop Vs is equal to Vg. Potential drops are same, but from Ohm's law, potential या फिर voltage it is I into resistance V equal to IR. तो potential drop across galvanometer is current through galvanometer into resistance of galvanometer, and Vs, that is potential drop across S, is current through S into resistance. Correct. Okay. Therefore, what I can write is Ig into G equal to Is. But from equation 1, Is is I minus Ig. तो मैं equation 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये, तो मुझे मिल जाएगा from equation number 1 and 2 I will have I minus Ig into S. इसका मतलब the value of shunt resistance to convert galvanometer into ammeter should be Ig into G upon I minus Ig. So this is the expression for shunt resistance to be connected to a galvanometer to convert it into an ammeter. Easy, right? Ab, what are the functions of galvanometer? Functions of galvanometer. What galvanometer is doing? गैल्वेनोमीटर कर क्या रहा है? एक, आपको पता होना चाहिए जब भी आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है. सो इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि आपने शंट किया है ना, उसको पैरेलल किया है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. सो फंक्शंस ऑफ, नॉट गैल्वेनोमीटर, सॉरी, फंक्शंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस बोलना चाहिए मैंने, फंक्शंस ऑफ शंट रजिस्टर S. तो शंट रजिस्टर ने क्या किया? शंट रजिस्टर ने गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर दिया. सो फर्स्ट फंक्शन of shunt S is it reduces effective resistance of ammeter, right? तो एक फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन, it increases the range of ammeter, क्योंकि अगर मैंने शंट रेजिस्टेंस नहीं लगाया होता तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर होता तो स्मॉल करंट मेजर करता, लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकता. बट बिकॉज ऑफ शंट, नाउ the same device can measure large current, so the range is increased. Most important function is, शंट नहीं लगाऊंगा मैं और हेवी करंट, लार्ज करंट पास कर दिया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा. So it protects the galvanometer from damage by providing alternate path to the excess current. So these are three functions of shunt resistor. Okay, now हमको शंट रजिस्टर का इक्वेशन मिल गया, हमको IG करंट का भी इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ SG एंड टोटल करंट. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाया है तो मुझे पता है कितना है, राइट? गैल्वेनोमीटर हम खरीद के लाए, उस पर लिखा होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है. टोटल करंट हम पास कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट आई वांट इज टू नो हाउ मच इज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर. ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा हमको, दैट इज फाइन, बट स्टिल वी वांट टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर IG. कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है. सो आई विल जस्ट टेक दिस इक्वेशन फ्रॉम हियर, राइट? या फिर ठीक है, what I'll do is IG into G is equal to IS minus IG into S. तो IG plus IG into S is equal to IS. Okay, right? So IG common, G plus S equal to S into total current I. Therefore, current through galvanometer is S upon G plus S into I.
So this is the expression for current through galvanometer. Okay, मिल गया. Then तो ये याद रखना, how have we derived it, because I'm going to erase this now. I need space. So what I will do is I will just keep important things in one corner and delete everything else. Okay, then what we can say about relation between total current and current through galvanometer. For example, मैं मान लेता हूँ ये 10 एम्पियर करंट है. ओके, और गैलोनोमीटर से गया फॉर एग्जाम्पल ओके वेरी स्मॉल करंट, मैं मान लेता हूँ 0.2 एम्पियर करंट गया यहाँ से एग्जाम्पल. तो कैन आई राइट 0.2 एम्पियर एज 2/10 एम्पियर? यस. ओके, मतलब दिस इज करंट थ्रू गैलोनोमीटर. ओके, हाँ, मतलब आई कैन राइट दिस एज 2 और 1/10. 10 क्या था? 10 था टोटल करंट, है ना. तो मुझे क्या मिल गया? IG इज इक्वल टू 2/I. मतलब आई कैन राइट डाउन I इज इक्वल टू, I can make a relation between two currents. So I can write down, instead of writing like this, मैं एक अलग नंबर यूज करता हूँ just to avoid any kind of confusion basically, नहीं तो confusion होगा. So I can say current through galvanometer is 2 ampere just for the sake of simplicity. Okay, right. So total current है 10 और current through galvanometer है 2. तो I can write down total current I as 2 into 5. मतलब I can write down total current as 5 into current through galvanometer, because you know 2 is IG. मतलब I can write down I is equal to n times of IG. ओके, तो ये पता होना चाहिए, है ना. करंट, टोटल करंट इज n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. क्यों ऐसा? क्योंकि IG जो है ये I का ही एक पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है? IS है. तो I can write down total current I is equal to some multiplicative factor. This factor can be a fraction, this can be a number, integer मतलब, into IG. This is important thing. अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे कुछ भी. ओके, देन इफ यू रिमेंबर, हमारे पास एक इक्वेशन आया था S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इनटू G. इक्वेशन फॉर शंट जो मैंने इरेज कर दिया. नाउ इन दिस इक्वेशन फॉर शंट what I will do is I will write down S IG upon total current I है, that is n times of IG minus IG into G. मतलब I can write down S is equal to IG upon IG common n minus 1 into G. IG cancel. मतलब I can write down n minus 1 is equal to G by S. So n is equal to G by S plus 1. मतलब n equal to G plus S upon S. Correct? So this is the factor by which the current through the galvanometer passes. Factor of total current of course. वैसे मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देता तो मुझे वहां से भी n मिल जाता. ओके, so in any case I can get it from there also. ओके, मैं रिपीट करने वाला हूं बट यू हैव टू पे अटेंशन. तो अभी तक हमने क्या क्या फाइंड किया? वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज the value of shunt. We have found out what is the current
through galvanometer in terms of S, G and I. What is this factor N? ये तीन चीज हमने फाइंड कर ली. What else do we need is to find out what is current through the shunt resistance. मतलब IS निकालना बाकी है. How do I find out IS is again a simple task. देखो यहाँ पे हमारे पास था I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी. इस इक्वेशन में इफ यू रिमेंबर हमने लिखा था आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस. क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था आई जी फाइंड करने में, इसलिए मैंने आई एस को एलिमिनेट किया. अब मेरा इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट आई एस, तो मैं आई जी को एलिमिनेट करूंगा. कैसे? तो मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूं आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई एस, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस. तो आई जी माइनस आई एस जी इक्वल टू आई एस एस, मतलब आई जी इज इक्वल टू आई एस कॉमन एस प्लस जी, मतलब करंट थ्रू शंट इज नथिंग बट जी टाइम्स ऑफ टोटल करंट अपॉन जी प्लस एस. तो आपको मिल गया करंट थ्रू शंट जी अपॉन जी प्लस एस इंटू टोटल करंट आई. If you notice this, if you compare current through galvanometer and current through shunt resistance, अगर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है तो ऊपर शंट रेजिस्टेंस आएगा, नीचे का फैक्टर सेम है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आई भी सेम है. अगर करंट थ्रू शंट निकालना है तो ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आएगा. सिंपल सिंपल सिंपल. तो ऐसा याद रखा जाता है वो, बिकॉज इन व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स you need to remember formulas. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये. I am repeating everything again basically. So how to convert galvanometer into an ammeter. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए what you have to do is you have to give extra path, alternative path for large current to flow. इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया शंट में पैरेलल में, राइट. तो टोटल करंट I will split up into two parts now, IG plus IS. मुझे यहाँ से मिलेगा IG is equal to या फिर IS is equal to I minus IG. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. क्योंकि गैल्वेनोमीटर और S रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G they are equal, and potential drop by Ohm's law is I into R. So current through galvanometer into resistance of galvanometer, current through shunt into resistance of shunt. So I will be substituting, instead of IS I will be writing I minus IG into S आ जाएगा. तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से I will obtain what is current, या फिर if I simplify this, तो सिंप्लीफाई करके मुझे मिल जाएगा S. So S will turn out to be I upon I minus IG into G, right? This is value of shunt resistance. Current upon current dimensionless, और into G is resistance, तो resistance आ गई. Okay, then from the same equation what I can do is I can write IG into G is equal to IS minus IGS. So I can just shift this on the left hand side. I can take out IG common, so G plus S equal to IS, right? So I will get current through galvanometer as S upon G plus S into I.
ओके, तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ IG, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ S. देन व्हाट वी नो इज दैट टोटल करंट इज n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट? ओके, सो ये I इक्वल टू NIG मैं S के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो I विल गेट S इज इक्वल टू IG अपॉन NIG माइनस IG इंटू G. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, n मिल जाएगा हमको G प्लस S बाई S. देन IS बाकी रह गया, वापस से हम लोग इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे. हम बोलेंगे IG इज I माइनस IS इंटू G इक्वल टू IS इंटू S. सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, यू गेट IS इज इक्वल टू G अपॉन G plus S into I, right? So there is nothing difficult over here. Easily आप एक गैल्वेनोमीटर को convert कर रहे हो into an ammeter, so you are increasing the range of that. So this topic is extremely simple topic, right? बहुत ही simple topic है. By the way, what are the functions of shunt resistor? पहला, shunt resistor will reduce the effective resistance of ammeter, क्योंकि शंट में पैरेलल में लगाने का मतलब ही ये होता है कि that you are reducing the resistance, overall resistance, equivalent effective resistance you are reducing. दूसरा, क्योंकि करंट को अल्टरनेट पाथ मिल गया, तो अब हम लोग लार्ज करंट्स भी मेजर कर सकते हैं. सो it increases the range of ammeter. तीसरा, क्योंकि अल्टरनेट करंट मतलब सॉरी क्योंकि लार्ज करंट जो था उसको एक अल्टरनेट पाथ मिला है, तो लार्ज करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का डैमेज भी नहीं होगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप सिर्फ करते क्या हो, यू कन्वर्ट, यू देखो यहाँ पे क्या किया, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया है, पैरेलल में. वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप एक लार्ज रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस स्मॉल था पैरेलल में. वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हो, ओके, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, दैट्स इट. तो गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर हम लोग कल देखेंगे, एंड द थियरी ऑफ दिस galvanometer as an ammeter will be uploaded in the file of today's lecture. Proper जो theory होगा with diagram, it will be uploaded. Okay, so because I cannot start theory now or voltmeter now, so tomorrow will be last lecture of theory part of this chapter. जैसे मैंने बताया, Thursday was our target and I think I am pretty sure Thursday तक हमारा ये chapter with numericals खत्म हो रहा है. Probably Wednesday ही हो जाए, हो सकता है, right? So we will start again from this point onwards in the next lecture.